Good morning, children. I am Asutosh sir. So today I am going to teach you factors and multiples, class 6 mathematics part 3. In the earlier lecture we have discussed about divisibility, we have discussed about odd numbers, even numbers, prime numbers, composite numbers. So in this lecture we will discuss about prime factorization. So what is actually prime factorization? Prime factorization is we will factorize that number on the basis of prime numbers. Let's see how it is done. That the first number is 12. So how we can factorize the number 12? So what we will do, we will factorize 2, 12. So the first prime number is 2. So we will divide 12 by 2, it will come 6. Now 6 is again divisible by 2, so we will again divide 6 by 2, it will come 3. But here 3 is not divisible by 2, so we will take the next prime number. So the next prime number is 3. So 3 is divisible by 3. So finally we get 1. So in this way our prime factorization is done, and what we get, that 12, for a prime factorization of 12 we get three things: 2, 2 and 3. So in this way we can write 12 as 2 into 2 into 3. This means 2 2s are 4 into 3 is 12. So finally we get the 12. Or you can write this in this way: 2 into 2 means 2 power 2 into 3. So in this way we find the factorization. Now see the other example. Here this is 1224. So we have to prime factorize this number. So we will start from 2 because 2 is the first prime number. So when we divide this number by 2, we will get 612. Again 612 is also divisible by 2. So we will divide 612 by 2 again. And when we divide 612 by 2, we will get 306. Again 306 is divisible by 2. So we will divide 306 by 2 again. And when we divide 306 by 2, we will get 153. Now 153 is not divisible by 3. 153 is not divisible by 2. So we will go to the next prime number, that is 3. And you can see here the sum is 5 plus 3 8 plus 1 9. So the sum is 9, so it will be divisible by 3. So we can divide this number by 3, and when we divide this number by 3 we get 51. Again 51 is divisible by 3. So we divide 51 by 3 and we get 17. Now we know that 17 is a prime number. So 17 cannot be divided by any other number. 17 will be divided by only 17. So we have divided 17 by 17 because this is a prime number, so this cannot be divided by any other number. So we divided 17 by 17 and finally we get 1. So our main target is to get 1 in the last, and when we get 1 in the last our work is done. So we can write 1224 as the what is written on the left side as 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 17. So if you multiply these numbers you will get the 1224. This is what known as prime factorization. So move to the next topic. Next number is 13915. So this number is not divisible by 2 because at unit place we don't have numbers like 0, 2, 4, 6, 8. And this is also not divisible by 3 because the sum is 1 plus 3 4 plus 9 13 plus 1 14 plus 5 19. Sum is 19. So 19 is not divisible by 3. So this number is also not divisible by 3. So we will move to the next prime number, and after 2 3 we have 5. So this number is divisible by 5 because at last we have 5. So when we divide this number by 5 we get 2783. Now we will check about 2783.
2783 is not divisible by 2. 2783 is not divisible by 3. 2783 is not divisible by 5 also. But I have not told you about the rule of 7. So you can check that this is divisible by 7 or not. So when we are checking this is divisible by 7, so we are finding that that 7 3 is 21, 6. So this is not divisible by 7 also. So we will move to the next prime number. After 7 we have prime number 11. So we will divide we will check that this is divisible by 11 or not. So this is divisible by 11, and after dividing we get 253. Again we will check that 253 is not divisible by 2, not by 5, not by 7, not by 3. So we will divide this number by 11 and we get 23. And again we know that 23 is a prime number, so it cannot be divided by any other number. So we will divide 23 by 23 and finally we will get 1. So in this way we will find that we got something on the left side, that 5, 11, 11 and 23. So 13915 can be written as 5 into 11 into 11 into 23. And when you multiply all these numbers, 5 into 11 into 11 into 23, you will find the exact number 13915. So this is how we done the prime factorization. उसके बाद देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का काम क्या है. व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. सो द फर्स्ट यूज ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ टू फाइंड द एचसीएफ. प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं. सो लेट्स सी हाउ दिस कैन बी डन. So here are two given numbers. Numbers are 385 and 621. And we have to find the HCF of that number. So we will prime factorize the two numbers separately. We will prime factorize the 385. So after the prime factorization of 385, it will be divisible by 5. It is not, 385 is not divisible by 2, neither by 3. So we will go to the 5. So 385 is divisible by 5. ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5 वी गेट 77. 77 आता है. तो 77 इज ऑल्सो, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 7. सो व्हेन वी डिवाइड इन दिस वे, व्हेन वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन इन दिस वे, फॉर 385 वी विल गेट 5 into 7 into 11 into 1. 5 into 7 into 11 into 1. In the same way, if we prime factorize the 6 to 1 number, we get 3 into 3 into 3 into 23. So see here again, if we are prime factorizing 385, we are getting 5 into 7 into 11 into 1. And if we are prime factorizing 6 to 1, we are getting 3 into 3 into 3 into 23 into 1. This means that if you multiply these numbers, we will get the 385 or we will get the 621. And after that we have to find SCF. So SCF is the highest common factor. So what is common in these two? In the first we have 5, 7, 11, 1, and in the next we have 3, 3, 3, 23 and 1. So basically we have 1 only in common. Neither 5, neither 7 nor 3. 11 भी कॉमन में नहीं है, 23 भी कॉमन में नहीं है. सो वी हैव ओनली 1 कॉमन नंबर, दैट इज़ 1. सो जो कॉमन में होगा दैट विल बी द आंसर एंड द एचसीएफ विल बी 1. सो आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसका कॉमन निकालेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है. तो जो कॉमन होगा वही एचसीएफ हो जाएगा. तो यहाँ पे देख सकते हो 385 को आई हैव रिटन एज 5 into 7 into 11 into 1. And 6 to 1 can be written as 3 into 3 into 3 into 23 into 1. So basically the common factor which is common in both, जो दोनों में है, 385 में भी है और 621 में भी है, this is only 1. So 1 will be the common factor और HCF इसका 1 आ जाएगा. And here you can see it is written there also co-prime. So I have told you earlier that co-prime number वो होता है जिसका HCF 1 आता है.
तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर हुज HCF इज 1। तो कोई भी दो नंबर का अगर HCF 1 आएगा तो उसको को प्राइम बोलेंगे, और यहाँ पे HCF 1 आया है इसीलिए ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर भी है। इन दिस वे वी कैन फाइंड द HCF ऑफ एनी नंबर। हियर सी द अदर एग्जाम्पल दैट द नंबर्स आर 106, 159 एंड 371। यहाँ पे तीन नंबर दिए हुए हैं, तो इन द सिमिलर वे हम लोग क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। 106 का अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, 159 का अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, 371 का अलग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो तीनों का फैक्टराइजेशन करने के बाद व्हाट आई एम गेटिंग दैट 106 आफ्टर द फैक्टराइजेशन ऑफ 106 आई एम गेटिंग 2 × 53। 53 को और नहीं तोड़ सकते बिकॉज 53 इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। प्राइम नंबर किसी और से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए आफ्टर 53 आने के बाद हम लोगों ने 53 से ही डिवाइड दिया है, क्योंकि ये किसी और से डिवाइड होगा ही नहीं। सो इन दिस वे 106 कैन बी रिटन एज 2 × 53, 159 कैन बी रिटन एज 3 × 53 एंड 371 कैन बी रिटन एज 7 × 53। सो तीनों का अलग अलग जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो तीनों में अलग अलग आएगा। फर्स्ट 106 में आएगा 2 × 53, और अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 106। दिस मीन्स आवर प्राइम फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। 159 में सिमिलर केस में 3 × 53 आएगा, और 371 के केस में 7 × 53 आएगा। एंड इफ़ यू मल्टीप्लाई 3 × 53 यू विल गेट 159। दिस मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज करेक्ट। सो तीनों का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और तीनों में अलग अलग आंसर आएगा। जैसा यहाँ पे आया है 2 × 53, 3 × 53 और 7 × 53। सो आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हम लोग क्या पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन है 53। तो तीनों में जो भी कॉमन होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कि एक से ज़्यादा कॉमन हो, तो वो सबको कंसीडर करेंगे, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हाईएस्ट HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो हाईएस्ट होगा वो लेंगे। फाइंड द LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हम लोग LCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट LCM। तो देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 28, 36, 45 एंड 60। ये चार नंबर है, इनको हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका LCM निकालना। तो यहाँ पे देखो LCM में अलग अलग करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू डू सेपरेटली। अलग अलग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम चारों को एक साथ कर सकते हैं, और ये एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी हम लोग LCM निकाल सकते हैं। सो हम लोग अभी तक देखे थे कि अलग अलग कैसे करके LCM निकाले, लेकिन LCM में हम लोग क्या करेंगे, चारों का प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ करेंगे। हाँ, इसको तुम अलग अलग करके भी निकाल सकता है, दैट्स वट एवर यू वांट यू कैन डू, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चारों का एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो ये कैसे किया हुआ है। सो यहाँ पे नंबर्स है कि 2, 36, 45 एंड 60। ये चार नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखो करना ये है कि इसमें चेक करना है कि कम से कम दो नंबर, कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग प्राइम नंबर से ही डिवाइड करवाते हैं, प्राइम नंबर से ही डिवाइड कराने का कोशिश करते हैं। तो हमको चेक करना है चार में से कम 2 एटलीस्ट 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर। सो यहाँ पे तुम देख सकता है 28 इज डिविजिबल बाय 2, 36 is divisible by 2, 60 is also divisible by 2. So in first step there are 3 numbers, 3 नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है। सो हम 2 से सबको डिविजिबल करा देंगे। तो 2 से 28 को डिविजिबल कराएंगे 14, 36 को डिविजिबल कराएंगे 18, 45 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 45 विल रिमेन सेम। 45 डिविजिबल नहीं है तो 45 ही रहेगा, एंड 60 का 30 हो जाएगा। उसके बाद यू कैन सी अगैन दैट 14 इज डिविजिबल बाय 2, 18 भी डिविजिबल है 2 से, 30 भी डिविजिबल है 2 से। तो यहाँ भी 3 नंबर मिल गया हमको, तो हम लोग फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7, 18 को डिवाइड करेंगे तो 9, 45 डिवाइड नहीं होगा तो 45 को वही रहने देंगे, और 30 डिवाइड करेंगे तो 15। अब यहाँ पे देखो 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर नहीं है,
ना 7 है, ना 9 है, ना 45 है, ना 15 है। सो हम लोग आगे मूव करेंगे 3 के लिए। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एलसीएम। अब देखो, फाइंड द एचसीएफ यूजिंग डिवीजन मेथड। अब करना ये है कि अभी तक हम लोग देखे थे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का दूसरा मेथड भी है, डिवीजन मेथड। तो देखो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 399 एंड 437, ये 2 नंबर दिया हुआ है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा नंबर को छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे। 437 को 399 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 437 को 399 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट रिमाइंडर में 38 बचता है। अब इस 38 से 399 को फिर से डिवाइड करेंगे। अब जब 399 को 38 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 19 बच जाएगा। अब इस 19 से 38 को डिवाइड करेंगे और फाइनली रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो हमारा मेन टारगेट यही है कि रिमाइंडर को 0 लाना, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक हम लोग डिवाइड देते रहेंगे। तो स्टार्ट करेंगे जो नंबर दिया हुआ है उससे, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उससे दूसरे नंबर को डिवाइड देते जाएंगे। जैसे फिर से देखो, यहाँ दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, द नंबर गिवन्स आर 658 940 एंड 1128। तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या किए, 658 और 940 का एचसीएफ निकाले। तो 940 को 658 से डिवाइड किए। जब 940 को 658 से डिवाइड किए तो 282 आया। अब 282 चूँकि रिमाइंडर बच गया तो 282 को फिर 658 से डिवाइड देंगे, और 658 को जब 282 से डिवाइड करते हैं तो फिर 94 रिमाइंडर बच जाता है। तो 94 जब रिमाइंडर बच गया तो फिर 94 से 282 को डिवाइड देंगे और फाइनली रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हमारा बेसिकली टारगेट यही होता है कि रिमाइंडर को 0 लाना, और जब भी हमारे रिमाइंडर 0 हो जाता है उसके बाद हम लोग उसको स्टॉप कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे 94 आया था। अब बचा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, हम लोग को पता चल गया कि वहाँ पे 94 एचसीएफ आ रहा था। तो अब क्या करेंगे, 94 से थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे, और जब तुम 94 को थर्ड नंबर से डिवाइड करता है तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब 94 एक ऐसा नंबर है वो जो सब को डिवाइड कर सकता है। दिस मीन्स 94 इज़ दैट नंबर विच कैन डिवाइडेड ऑल द नंबर्स। सो 94 हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। सो बेसिकली यही करना है कि अगर 2 रहता है तो सिंपल, बट थर्ड रहेगा तो 2 का एचसीएफ निकाल के उस एचसीएफ से थर्ड नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी तुम एचसीएफ या एलसीएम का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू मस्ट कीप इन माइंड कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट निकालने बोल रहा हो, ग्रेटेस्ट निकालने बोल रहा हो, लार्जेस्ट निकालने बोल रहा हो, सो अगर ये सब चीज़ निकालने बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट लेंथ निकालिए, लार्जेस्ट हाइट निकालिए या ग्रेटेस्ट कुछ निकालिए, तो उस सब में एचसीएफ निकालेंगे। कोई भी प्रॉब्लम में अगर लॉन्गेस्ट वर्ड दिख जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड दिख जाए, लार्जेस्ट वर्ड दिख जाए, तो उन सब क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है। दूसरा पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अगर किसी क्वेश्चन में लीस्ट निकालने बोले, लोएस्ट निकालने बोले, स्मॉलेस्ट निकालने बोले, तो अगर ये सब चीज़ किसी क्वेश्चन में निकालने के लिए कहेगा तो उसमें एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर किसी क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट निकालने बोलेगा तो उसमें एचसीएफ निकालेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में लीस्ट निकालने बोलेगा तो उसमें एलसीएम निकालेंगे। सो बाय रीडिंग द क्वेश्चन, बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, तुमको समझ में आ जाएगा कि उसमें लॉन्गेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है या लीस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल फाइंड कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। एंड द थर्ड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो 2 नंबर है तुम्हारे पास 7 एंड 14, तो 7 और 14 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 और 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, 198 आएगा। एंड इसका एलसीएम 7 एंड 14 का एलसीएम विल बी 14 एंड एचसीएफ विल बी 7। सो 2 प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका जो एलसीएम निकालेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, और उसका जो एचसीएफ निकालेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 प्रोडक्ट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एलसीएम और एलसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों बराबर आएगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड एलसीएम ऑल्सो।
तुम इससे एलसीएम भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, एंड एचसीएफ विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम. थैंक्स अ लॉट.